Now we will start with the rotor dynamics in synchronous generator, which is really interesting and important topic to understand the stability problem. So what actually happens in the synchronous generator while there is a disturbance going on or there is any impact on the generator. So first start with the original setup of a synchronous generator. Actually, whenever there will be a synchronization or the synchronous generator is moving or rotating in a synchronism position, the position is just like this. So first of all, you must understand how the generator gains synchronism. First, you know that what is the logic or concept behind that how the generators gain synchronism, that is a synchronous generator. So what is actually going on? Just अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस दैट होता ये है कि आपने जब अपने जनरेटर को ऑन किया, सिंगल जनरेटर आपने ऑन किया, कैसे ऑन होगा जनरेटर आपका? क्या आप उसके ऊपर कोई प्राइम मूवर से उसके रोटर को मूव करेंगे, घुमाएंगे, रोटेशन देंगे, और वो जो प्राइम मूवर है वो क्या है, वो उधर कोई पानी आ रहा होगा या कोई गैस आ रहा होगा, तो दैट गैस और दैट वाटर विल बी यूज्ड टू टर्न योर turbine, and that turbine actually turns your rotor. And at which speed you will turn your rotor? How will you know that? Number of poles, depending, because you know the frequency of your system. You know that the system frequency is 50 hertz. Now then you will look at the number of poles of your machine. If they are 2, then you will run that rotor at a speed of 314 radian per second. If the number of poles are 4, 6, maybe 84, then based on those number of poles, you will set the speed of your rotor. So at that speed you will turn your rotor, and ultimately that speed will produce the 50 hertz of the frequency. Then how that rotor or the moving rotor will produce 50 hertz of the frequency? How you will get synchronism? Now I will explain this point. So first you will run the rotor of a machine. Simultaneously what you will do is that at the same time you will apply the field voltage there. How you will apply the field voltage there? Through DC exciter on the field windings of your rotor. At the same time you will apply the voltage, field voltage over there at the field windings of your generator, and simultaneously the rotor is moving at a speed of 314. If the machine is 2 pole, the rotor is moving at a speed of 314 radian per second, and the DC exciter is basically producing the flux in the field winding of your rotor. So now your rotor is moving at a speed, and the field lines that are produced through field winding, because that field winding will produce the magnetic field lines. Because of what? Because of the excitation that you applied through DC exciter. So the magnetic field lines produced by the field winding, and those field lines are moving inside the air gap of your synchronous machine. These field lines are moving. Why they are moving? They are moving because your rotor is moving, and now these field lines will cut the armature winding. These field lines will cut your stator windings, the armature windings, and produce a flux there. The flux that is produced by these field lines, magnetic field lines, in where? In the armature winding of your stator. Because of that flux, the EMF will be induced in the stator. Agreed? So the EMF will be induced. Now the important point here is that the EMF that is induced there, that EMF must have a sinusoidal wave. How can we check that EMF? That is basically a voltage, and voltage is in form of sinusoidal wave. The frequency of that induced EMF should be equal to 50 hertz. So what is this synchronization? What is this synchronism all about? This synchronism is all about that the speed of your rotor should be equal to 314 radian per second for the 2-pole machine, and the flux produced there has a frequency of what? 50 hertz. So both of these frequencies are now synchronized. One is your mechanical speed and the other is your electrical speed. When both of these speeds are synchronized, we will say that your machine is in synchronism. Get it or not? Yes. So this is basically synchronism. So synchronism is only between the frequencies. It is not between the voltages.
You might have the same voltage induced, the magnitude of the voltage may be the same that is induced already there in the field winding, and that voltage may be induced in the armature winding as well, but they are never in phase with each other. The synchronism is between the frequency of those voltages, but not the phase angles. So you know the difference between the frequency and the phase angle. The frequency means the number of cycles that are completed in 1 second, and the phase is the phase difference between both of them. So whatever the phase of the voltage there in the field winding, the phase of that voltage in the armature winding is different as compared to that of the field winding. But both of them they have the same. Both of them they have the same frequency. One frequency is there in the rotor side and the other frequency is there in the stator side. When both of these frequencies are become same, 50 Hz and 50 Hz, so at that time we say that your machine is in synchronism, but it is not the case that their voltages are also exactly in phase with each other, and because if their voltages become exactly in phase with each other, then there won't be any phase difference. If their voltages will be exactly in phase with each other, there won't be any phase difference. So what is the voltage angle there? The voltage angle between the field winding voltage and the armature winding voltage, that voltage angle is usually known as delta. That voltage angle is usually known as delta, here represented with this sign, and this voltage angle is known as power angle. And this voltage angle is known as power angle, that is governed by famous power transfer equation, or the power equation, which is equal to P is equal to EV sine delta over X. So the delta here is basically this angle, which is known as the power angle, and this is the angle between which, this is the angle where, this is the angle between the field winding and the angle of the armature winding, the induced voltage at the armature side and the voltage at the field side. The angle difference between them is the power angle. Agreed? So this angle should not be equal to 0 degree. If it is a 0 degree, I mean this angle should not be equal to 0 degree. Agreed? This angle should not be equal to 0 degree. And when it can be 0 degree, I mean ये कब 0 degree कब होगा? ये 0 degree कब हो सकता है? जब E और V के एंगल सेम हो. जब E और V के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि दोनों का फेज सेम होगा. अगर इन दोनों का फेज सेम होगा, तो जब वो यहाँ पे आएगा एंगल के अंदर, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0. अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो EV आपको पता है साइन 0 मीन्स 0. So it means your power transfer will equal to 0. So there should be an angle difference between your field voltage and your armature voltage. And what is that angle difference? That angle difference can be from 0 to 90 degree. That angle can vary from 0 to 90 degree. How that angle vary? I mean, why 90 degree? Because you know that EV sine 90 means you have the maximum value of power at this value. You have the maximum value of the power at EV sine 90. So how this angle varies? I mean, how this angle varies from 0 to 90 degree? This is again a question mark. How this angle, delta angle varies between 0 to 90 degree. This is again a question mark. Whenever you synchronize the machine, and when you synchronize the machine, आपकी मशीन कब सिंक्रोनाइज होती है? जब आपने रोटर चलाया, रोटर चलाने से फील्ड के अंदर एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उस फील्ड का जो फ्लक्स था उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी जब किस फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज कर गई, जो आर्मेचर के अंदर जब आप वो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हुई, ये दोनों जब फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मैच कर गई, तो उस वक्त आपका जो रोटर फील्ड जो थी आपकी स्टेटर की फील्ड के साथ क्या कर गई, सिंक्रोनाइज कर गई. ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज नोन एज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. जब आपकी रोटर की फील्ड स्टेटर की फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज कर जाती है, वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. ये जो पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, उस वक्त आपका रोटर की फील्ड और आपकी स्टेटर की फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती है, जस्ट लाइक दिस. At that point of synchronization, your rotor field, for example, this is your rotor field and this is your stator field, they both become synchronized with each other. Now, I mean, both of them they are not in the same phase. I mean, both of them they don't have any same phase. इन दोनों का फेज सेम नहीं है, एक दूसरे से क्या है, दूर है एक दूसरे से. ये जो इन दोनों के दरमियान एंगल है, व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज बेसिकली पावर एंगल डेल्टा. दिस एंगल इज बेसिकली पावर एंगल डेल्टा. So this is the phase difference. Both are not at the same angle. They have the same angle difference, which is delta.
मे बी 45 डिग्री, मे बी 30 डिग्री, मे बी 25 डिग्री, and it can maximum up to go up to which point? 90 degrees. Agreed? It cannot be 0 degree, because if it is a 0 degree, then there won't be any power output. It means the machine is stopped. Then the आपकी मशीन, तो फिर क्या, ये जो इन दोनों, ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरलॉक, जब ये इंटरलॉक हो जाती है आपकी कौन सी फील्ड, रोटर की फील्ड और स्टेटर की फील्ड, ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गई, अब मशीन क्या आपकी ऐसे से चलती रहेगी, स्टेटर की फील्ड भी चलेगी, रोटर की फील्ड भी चलेगी, दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ साथ चलेगी और आपकी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज सिंक्रोनिज्म। ये जो सिंक्रोनिज्म के ऊपर आपका एंगल डेवलप होता है इन दोनों के दरमियान, जिस एंगल पे जाके एक दूसरे के साथ ये सिंक्रोनाइज करती हैं, उस एंगल को हम कहते हैं पावर एंगल। याद रखेंगे आपकी बात, ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स, जैसे आपने दो घड़ियों को सिंक्रोनाइज कर दिया, आपके पास दो क्लॉक्स हैं, दोनों क्लॉक क्या कर रहे हैं, दोनों क्लॉक की जो टिक टिक है, बोथ क्लॉक टिक एट द सेम टाइम, आई मीन वन क्लॉक टिक, द अदर वन आल्सो टिक। मेरी बात समझ आई मैं क्या बात करूं, दोनों क्लॉक क्या करें, टिक 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 एट द सेम टाइम, लेकिन जो एक क्लॉक है वो दूसरे क्लॉक से 10 सेकंड पीछे, 10 सेकंड पीछे, टिक दोनों की इकट्ठी आ रही है, यानी कि मूव दोनों साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा क्लॉक है वो पहले क्लॉक से कितना पीछे, 10 सेकंड बैक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हो तो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज गए ना, ये टिक करता है तो ये टिक करता है, बोथ ऑफ देम दे आर सिंक्रोनाइज, लेकिन एक क्लॉक गया दूसरे से 10 सेकंड पीछे। तो सेम इज गोइंग विद दिस कि आपकी ये एक फील्ड मूव कर रही है जो कि रोटर के आपकी जो जनरेटर की एयर गैप के अंदर फ्लो करती है, ये एक फील्ड है, ये दोनों ने उसी वहां पे मूव करना है, लेकिन दोनों क्या हो जाती है, दोनों मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गई है एक पॉइंट पे। अब एक भी मूव कर रही है, दूसरी भी मूव कर रही है, जिस पॉइंट पे ये इंटरलॉक हो गई है, इस पॉइंट को हम, ये सिंक्रोनाइज एंगल है, एंगल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, व्हिच इज आल्सो नोन एज द पावर एंगल। अब मेरी बात समझ आ गई आपको? सो अभी जो मैंने आपके पास पहले ये मशीन का एक बना रखा है रोटर डायनेमिक्स की एक फिगर, जो कि आपके बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या है, एक आपकी जो फील्ड है जो कि ओमेगा आर है, दिस इज योर रोटर एक्सिस, इनको हम जनरेटर के कौन से एक्सिस कहते हैं, रोटर एक्सिस, और ये जो रोटर एक्सिस हैं ये डिफाइन करते हैं फील्ड वाइंडिंग एक्सिस, क्योंकि फील्ड जो है वो किसके ऊपर होती है, रोटर के ऊपर होती है। तो जो रोटर है आपका, उसी के जो एक्सिस हैं उनको हम के फील्ड के एक्सिस कहते हैं। ऐसे ही हो गया, ये जो एक्सिस आपके डेवलप हुए हैं ये किसके एक्सिस हैं, वो सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस रोटर की फील्ड की वजह से डेवलप हुई आपके एयर गैप के अंदर, और वो इसके साथ लॉक हो गई है, यानी कि ये एक फील्ड है रोटर फील्ड, और ये जो है ये आपकी कौन सी फील्ड है, सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई आपको बात मेरी? अब ये क्या है, ऐसे 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 साथ साथ मूव करेंगे दूसरे के। ओमेगा एस इज बेसिकली सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस। ये फील्ड है, कौन सी फील्ड है, दिस इज दैट फील्ड वो जो आपके आर्मेचर में प्रोड्यूस हुई है, दिस इज दैट फील्ड एंड दैट इज विद द ग्रीन कलर, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस फील्ड। नाउ दे विल मूव एट एन एंगल एंड दैट इज, एंड इन बिटवीन देम देयर इज एन एंगल, इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, उस एंगल को हम कहते हैं पावर एंगल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन डेल्टा, आई एम राइटिंग इट हियर। ये जो एंगल है इन दोनों के दरमियान, इस एंगल को हम कहते हैं, ये है एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम व्हिच इज एंगल डेल्टा। नाउ देयर इज अनदर एक्सिस हियर, देयर आर अनदर रेफरेंस, देयर आर अनदर एक्सिस हियर व्हिच इज दिस वन, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस। ये क्या है, रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे होते हैं, ये आपके स्टेटर के ऊपर होते हैं। स्टेटर के ऊपर कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप डिक्लेयर कर देते हैं ये आपका क्या है, रेफरेंस है, वो रेफरेंस एक्सिस होते हैं, वो स्टेशनरी एक्सिस होते हैं, वो कहीं मूव नहीं कर रहे होते हैं। रोटर एक्सिस जो रोटर फील्ड है या और जो आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मूव कर रही होती हैं। जो आपके रेफरेंस एक्सिस होते हैं वो अपनी जगह स्टेटर पे वहीं पे रहते हैं। अब ये आपका मेन स्टेशन है, आप समझें। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। देखें, आपकी दो बसेज हैं, 2 बसेज हैं, उनमें से दोनों ने ट्रैवल करना है कहाँ पे, मोटरवे पे, बोथ आर बेसिकली ट्रैवलिंग ऑन द मोटरवेज और हाईवेज। सो दोनों अपने बस स्टॉप्स पे खड़ी हैं, दोनों डाइवो टर्मिनल्स पे स्टैंड कर रही हैं। ऐसे ही है, जस्ट कंसीडर दिस रेफरेंस एक्सिस एज अ योर डाइवो टर्मिनल। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, और 2 बसेज हैं जो मूव कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह मूव कर रही हैं, इन सिंक्रोनिज्म विद ईच अदर। एक बस जो है वो आधा घंटा पहले चली गई है, और जो दूसरी बस है वो एक आधा घंटा बाद चली गई है। ऐसे ही हुआ, जो आधा घंटा पहले गई है वो आगे जा रही है, दोनों एक स्पीड से जा रही हैं। बोथ बसेज आर गोइंग एट द सेम स्पीड विच इज मे बी 120 किलोमीटर पर आवर। सो जो आधा घंटा पहले जा रही है, दैट मे बी एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट that may have reached there at the Chakri, fine, because I am starting from here, from Islamabad.
So that bus may have reached Chakri, and the other bus that have right now left the Daivo terminal, that is reach wherever, हम उसके कहाँ पे पहुंच गए, हम कह देते हैं कि उसने अभी इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस किया है। एग्रीड, मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट? दोनों ने, अब दोनों किस स्पीड से जा रही हैं? 120 किलोमीटर पर आवर से। एक कहाँ पे पहुंच गई चक्री और एक कहाँ पे है? अब दोनों 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ये देखिएगा, दोनों एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करेंगी अपने साथ साथ। ये भी 120 से 120 से जा रही है और ये भी 120 से जा रही है। दोनों भागती जा रही है लाहौर की तरफ। दोनों के दरमियान सेम डिस्टेंस रहेगा, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि दोनों के ड्राइवर्स की कैपेसिटी एक है, दोनों एक ही स्पीड पे जा रहे हैं, दोनों के ऊपर लोड है, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों मूव कर रही है किस स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर से। तो दोनों कितना एक कांस्टेंट डिस्टेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन करेंगी, एंड दे आर नाउ सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। ये क्या हो चुकी हैं? एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड। अब रेफरेंस एक्सिस क्या है? बात हम किसकी कर रहे थे? रेफरेंस एक्सिस की। रेफरेंस एक्सिस क्या है? डाइवो टर्मिनल। अब मैं देखना चाहता हूं अब से 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, मैं देखना चाहता हूं डाइवो टर्मिनल पे बैठे हुए ही कि मेरी जो 2 बसेज हैं जिन्होंने लेफ्ट किया था इस बस टर्मिनल को, वेयर आर दे नाउ? तो व्हाट आई विल डू? आई जस्ट सिंपली सेड 2 आवर्स हैव पास्ड, the both of the buses are going at a speed of 120 kilometers per hour, so understandably they have covered the distance of 240 kilometers. So right now from the reference, what I will say that from Daivo terminal, one of the buses, because it has passed 1.5 hours and the other bus has passed 2 hours. तो एक का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे 1.5 से, और एक का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे 2 घंटे से, तो एक का 240 आ जाएगा और एक का 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 किलोमीटर। एक ने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अभी तक, और दूसरे ने कितना ट्रेवल कर लिया है? 240 डिस्टेंस। मेरी बात समझ आई? मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई कि लेकिन वो डिस्टेंस कहाँ से निकला? रेफरेंस से। इसी तरह जनरेटर में अगर आपने देखना है, जनरेटर के अंदर भी आपकी जो जनरेटर है उसके अंदर एक आपका रोटर मूव कर रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके रेफरेंस से ये कितना दूर है, कहां से देखेंगे? इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? वो इक्वल है थीटा के। यानी कि रेफरेंस से लेके रोटर तक का डिस्टेंस कितना है? रोटर कितना दूर जा चुका है? रेफरेंस ये था ना, ये रोटर से कितना, अगर हमने देखना है कि ये आपके रेफरेंस से कितना दूर है रोटर, तो हम क्या करेंगे? लीनियर मोशन के अंदर तो हम डी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोशन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एंगल, दैट इज थीटा। एंगुलर मोशन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? थीटा, एंगल कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? हमने उसको कह दिया थीटा, कि ये कितना दूर जा चुका है इस वक्त रोटर आपके रेफरेंस एक्सिस से, कितना दूर जा चुका है? रेफरेंस से थीटा दूर जा चुका है। और ये जो थीटा है, ये थीटा किसके इक्वल है? थीटा देखें डेल्टा, थीटा किसके इक्वल है? डेल्टा। एक तो डेल्टा हमें फिक्स है। डेल्टा आपको कैसे पता चला? थीटा कैसे पता चला हमें कितना दूर है? डेल्टा हमने क्या कह दिया? क्योंकि इन दो का डिस्टेंस तो इतना मेंटेन है, ये तो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट आ गया। एक तो हमारे पास चल गया थीटा कितना दूर चला गया कि जो रोटर और जो आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे से इतनी दूर चल रही है, ये तो फिक्स है। एक तो वैल्यू ये हो गई। बाकी कितना दूर चला गया वो हमें कैसे पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा कि इसकी जो स्पीड है, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है ना। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हुए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। आपको पता है आपकी सिंक्रोनस स्पीड क्या है? 2 पोल जनरेटर मशीन के केस में 377 314, अगर 50 हर्ट्ज सिस्टम है आपका तो मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल है वो इक्वल होता है, द एंगल इज बेसिकली इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, जब स्पीड है वो किसके इक्वल होते होती? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। समझ आ गई आपको बात? इसलिए अगर हम देखना चाहते हैं कि थीटा कितना दूर है तो कितना दूर पता चल गया? डेल्टा, जो कि इनके दरमियान फिक्स एंगल है। क्यों फिक्स है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हुए हैं। आपका जनरेटर जो है इस वक्त सिंक्रोनसली रोटेटिंग फील्ड के अंदर ऑपरेट कर रहा है। आपका जनरेटर जो सिंक्रोनाइज्ड है, एंगल लैम्डा फिक्स, डेल्टा फिक्स हुआ है। अच्छा, ये डेल्टा आपका यहाँ से ये आ गया। बाकी जो यहाँ से कितना दूर जा चुका है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम हो चुका है। स्पीड आपको पता है। स्पीड आपको क्यों पता है? क्योंकि कौन सी स्पीड है, किस स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं?
सिंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हो, सिंगुलर स्पीड आपको पता है कितनी है, टाइम आप देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका रोटर आपके रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर है। समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये वो थीटा होता है। आई होप कि ये आपको बात, अब ये जब सब कुछ जब हो रहा था, ये सब कुछ जब हो रहा था जब आपकी तरफ देयर वाज नथिंग, I mean there was no disturbance, there was nothing abnormal going on, everything was normal, the system is performing really well, the system is in steady state and there was no problem. But suddenly there disturbance occurs. What happens is that कि आपके पास क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आ गई। अब जब डिस्टर्बेंस आई तो आप देखिएगा डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, डिस्टर्बेंस से सबसे पहले क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड हुई, और चेंज इन स्पीड इज व्हाट, एक्सेलरेशन। डिस्टर्बेंस आने से क्या हुआ, चेंज इन स्पीड हुआ, और चेंज इन स्पीड से क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। अब क्या हुआ, अगेन नाउ कम टुवर्ड्स द एग्जांपल अगेन, both of them they are going with the same, I mean they were interlocked, both of them they are interlocked, fine, and they are moving with the same speed, everything was fine. Suddenly there is a disturbance, disturbance कैसी आई, कुछ भी आ गई, I mean sudden removal of a load, sudden application of a load, for example we have a sudden removal of a load। अगर हमारे पास लोड हट जाता है सिस्टम से, या लोड हट रहा है सिस्टम से, या क्या हो रहा है, आप कोई जनरेशन इनपुट ज़्यादा हो रहा है जनरेशन का, यानी कि आपने उसके ऊपर जो प्राइम मूवर है उसके ऊपर ज़्यादा आपने पावर, आपने मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा अप्लाई कर दी, उससे क्या होगा, आपका रोटर जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू होगा। किसकी स्पीड चेंज होगी, रोटर की स्पीड चेंज होगी ना। आपने मैकेनिकल इनपुट बढ़ाया, जैसे ही आपने मैकेनिकल इनपुट बढ़ाएगा तो रोटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रोटर ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हुआ, लेकिन आपकी ये फील्ड थी जो कि आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, ये तो अभी उसी फ्रीक्वेंसी पे थी ना, इसमें तो अभी चेंज नहीं आया था स्टूडेंट्स, तो ये तो उसी फ्रीक्वेंसी पे। रोटर ने क्या किया, रोटर ने तेजी से जाना, ये अभी पहले लॉक थे, अभी पहले तो साथ साथ चल रहे थे, जैसे ही डिस्टर्बेंस आई रोटर के ऊपर इनपुट ज़्यादा हुआ, रोटर तेज हो गया, उसकी तेजी से क्या हुआ, ये जरा आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। ये दोनों चल रहे हैं, चलते दोनों जाएंगे, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज करेगा जितनी डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो, जितना उसके ऊपर डिस्टर्बेंस आया होगा। कितना इन दोनों के दरमियान एंगल डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जितनी डिस्टर्बेंस होगी। अगर पहले फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम था वो ऑपरेट कर रहा था 25 डिग्री पावर एंगल के ऊपर, डिस्टर्बेंस आई तो नाउ मे बी द डिस्टर्बेंस उसके अंदर ऐड कर देती है एंगल 20 डिग्रीज मोर, तो बिफोर इट वाज 25 डिग्रीज, नाउ द एंगल इज 45 डिग्री। एग्रीड, मेरी बात समझ आई स्टूडेंट्स? डिस्टर्बेंस बड़ी आ गई और उसने 25 में 20 ऐड होने की बजाय कितना ऐड हो गया, 40 डिग्रीज, तो मे बी इट विल बी 65 डिग्रीज। मेरी बात समझ आ रही? अब ये 65 डिग्रीज पे भी आपका सिस्टम ऑपरेट करेगा, करेगा ना, क्यों करेगा, अभी 90 डिग्री के अंदर है, 90 डिग्री के अंदर है ना, पावर आउटपुट आपकी बढ़ जाएगी, जनरेटर की इनपुट ज्यादा हुई है, पावर आपकी आउटपुट बढ़ती जा रही है। एग्रीड? ये कब तक ज्यादा हो सकता है आपका, 90 डिग्री। ये कितनी डिस्टर्बेंस को बेयर कर सकता है, 25 पे पहले चल रहा था, और इसके अंदर कितनी डिस्टर्बेंस आ सकती है, 65, तो 65 डिग्रीज की और डिस्टर्बेंस ये बेयर कर सकता है। अगर ये इनिशियल एंगल ऑफ सिंक्रोनाइज, जिस एंगल पे इनिशियली सिंक्रोनाइज हुआ था 25 था, अगर ये, तो ये कितनी और डिस्टर्बेंस बेयर कर सकता है, 65 के बाद क्या हो जाएगा, 90 से ड्रॉप, तो इसका आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले ही अगर ये सिंक्रोनाइज हुआ था किस एंगल के ऊपर, पहले ही अगर ये 25 की बजाय 60 डिग्री पे सिंक्रोनाइज हुआ था, अब ये कितनी डिस्टर्बेंस बेयर कर सकता है, 30 डिग्री की। 30 के बाद क्या होगा, आपका जनरेटर जो है वो क्या होगा, उसके आउटपुट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? सो क्या ये जो चेंज है, पहला आपका एंगल क्या था, ये चेंज है आपका, ये आपकी बेसिकली जो चेंज है, चेंज इससे आपका एंगल बढ़ता है, और एंगल जो है वो आपका कितना मैक्सिमम हो सकता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद आपका एक ऐसा एंगल आता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और वो क्रिटिकल एंगल हम जाके पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने का ये बता रहा हूँ कि जब आपका एंगल चेंज आता है, डिस्टर्बेंस आती है, तो उससे ये वाला एंगल चेंज होता है, और ये एंगल मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है, 90 डिग्री तक, क्योंकि 90 के बाद क्या होता है, आपका आउटपुट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे अप्लाई करें, इसको बना हुआ है आपके सामने फिगर। अगर आप ये देखें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर दैट, ये आपकी इनिशियल रोटर पोजीशन थी, वो जो इनिशियल रोटर पोजीशन है ना वो वाली,
वो पहले ये थी, सही है, वो ये थी, और आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस ये थे। एग्रीड? उस वक्त आपका जो एंगल था, उस एंगल का पहले तो हमने नाम दे रखा था डेल्टा, अब हमने उसका नाम कितना दिया हुआ है, उसका अब नाम जो है वो है डेल्टा नॉट, सही है। उसका अब एंगल, अब उसका नाम क्या है, पहले जिसका एंगल क्या था, डेल्टा, अब डिस्टर्बेंस आने से पहले इस एंगल का नाम हमने क्या रख दिया है, डेल्टा नॉट। देयर इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, रोटर ने एक्सेलरेशन गेन की, आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग जो फील्ड थी वो तो उसी स्पीड से चल रही है, लेकिन रोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गई, तो इनके दरमियान जो एंगल अब डेल्टा नॉट नहीं रहा, उससे एंगल में चेंज आया। वो जो चेंज इन एंगल है, उस चेंज इन एंगल को हमने क्या कह दिया, डेल्टा डेल्टा। ये जो डेल्टा डेल्टा है, अब ये चेंज इन एंगल है, और डेल्टा नॉट इसका इनिशियल एंगल था बिफोर डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस के बाद एक्चुअल एंगल इसका कितना बन गया है, वो हो गया टोटल डेल्टा। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम क्या करें, जो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इंजीनियर है या पावर सिस्टम इंजीनियर है, या तो वो अपनी मशीन अगर यहाँ पे आके उसने सिंक्रोनिज्म दोबारा अचीव कर ली है तो ऑल ओके, अगर नहीं की तो वो कोशिश करे कि जो आपकी सिंक्रोनिज्म है दोबारा इनिशियल एंगल पे जाके अचीव हो जाए। समझ आ रही है आपको बात? तो दिस इज बेसिकली द रोटर डायनामिक्स। अब जैसे जैसे आपका ये डिस्टर्बेंस अगर बड़ी होगी, ये डेल्टा डेल्टा का एंगल आगे जाएगा, ये डेल्टा की वैल्यू बड़ी होगी। अब अगर आप देखना चाहते हैं अगेन कि आपका टोटल जो आपके रोटर एक्सिस हैं उनका और आपका रेफरेंस एक्सिस का डिस्टेंस कितना बन गया, वो अगेन आपको पता है वो कितना है, वो थीटा ही रहेगा। थीटा किसके इक्वल रहेगा, डेल्टा प्लस ओमेगा एस टी, लेकिन अब डेल्टा किसके इक्वल है, डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा नॉट के इक्वल है। So this is basically the rotor dynamics which happens because of the change or the disturbance on power system.